Everyone, once again I welcome you all in chemistry class by our own sir. Till now we have discussed or I have explained the basics of the chemistry about the units, fundamental units, derived units, their representation, fundamental units and their types, their representation, derived units and their representation. After that, classification of the matter also we have discussed, physical as well as chemical classification. Then we have discussed about the basic units of length, the volume, the area, the temperature. In the temperature also I have told you different units, that is centigrade, Kelvin and Fahrenheit. After this we are moving on towards the actual chemistry, that is from today onwards we will be discussing about the laws related to chemistry, and the topic is laws of chemical combination. Now listen carefully, and the important part of this is that learning of the law means this is the theory question. भाई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, define so and so law, but the second thing is more important, numerical based on that law. So today along with this particular video I will be providing you a worksheet also. Okay, and also from today onwards I will be providing you the photographs of the notes which I will provide you, so that at home you can note it down and can prepare the fair notes also. Laws of chemical combination, this is the main topic to be studied. इसके अंदर हम लोग जो इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में जो भी लॉज थे जिनके के ऊपर बेस्ड केमिस्ट्री की स्टडी हुई है वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है कि नहीं. तो जो लॉज अलग अलग टाइप के अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, विच आर दी एक्चुअली बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. और हर लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होगा. तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है. लॉ को एज इट इज़ लर्न करना है. नेवर ट्राई टू मेक द लॉ इन योर ओन टर्म्स, in your own language, because small twist can change the meaning of the complete law. So this is the learning part. Second is the application part. हर law पर based कुछ numericals होंगे, so that is the numerical part. First law is law of conservation of mass, given by Antoine Lavoisier in the year 1774. And according to this, mass can neither be created nor can be destroyed during a chemical reaction. That is, mass of the reactant is always equal to mass of the product. Okay, once again I am repeating, during a physical or a chemical process or physical or chemical change, the mass of product is always equal to reactants. इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, mass can neither be created nor can be destroyed during a chemical change, during a chemical process, and the mass of the reactants is always equal to mass of the product. For example, I have taken mercury oxide. When heated it is of red color. When it is heated it decomposes to form mercury and oxygen. So if we take reactant, that is mercury oxide, 100 gram, and it is being heated, so it will decompose, and the mass of the products means mass of mercury and mass of O2, if we add them we get 92.6 gram of mercury on decomposition of 100 gram of mercury oxide and 7.4 gram of O2. So if you add these two means mass of product, and that will be equal to 100 gram, that is mass of the reactant. Second law is law of constant proportion, also called as law of definite proportion, which was given by Joseph Proust in the year 1799. It is a very important and very basic law which states that a chemical compound always contains same elements combined together in same proportion
by mass. Very important law. Once again, I am repeating. A chemical compound always contains same elements combined together in same proportion by mass. Is that clear? I'll give you an example with proper explanation. Suppose I take an example of molecule water. Water is a compound. It contains hydrogen and oxygen. In water, there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So now we have to calculate the ratio of their masses. So mass of 2 atoms of hydrogen will be equal to 2 and mass of oxygen will be 16. So the simple whole number ratio comes out to be 1:8 by mass. So we conclude that in water always hydrogen and oxygen are there in the ratio of 1:8 by mass. बट ये ध्यान रखना ज़रूर, इट इज़ रेशियो बाई मास, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. कि कल को तुम इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल ले लो और कहो भाई 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, वो नहीं. नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट इन टर्म्स ऑफ मास. आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन का मास है 12, एक एटम का एटॉमिक मास, और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो मास कितना हो जाएगा बेटा? 32. तो रेशियो निकाल लेते हैं. 3:8 by mass. So carbon dioxide is a compound in which carbon and oxygen are in the ratio of 3:8 by mass. इसको बेटा आप रिवर्स भी समझ सकते हो. कहीं से भी हमको एक अननोन कंपाउंड मिला और उस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उनके बीच में रेशियो 1:8 है, तो इट मीन्स इट इज़ वाटर. रिवर्स, हमको कहीं से एक अननोन गैस मिलती है, कोई अननोन कंपाउंड है विच कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज 3:8, देन द कंपाउंड विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज यूनिवर्सल इन नेचर. मीन्स एक कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स होंगे और उनके बीच में जो रेशियो होगा बाई मास वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो कभी भी बदलता नहीं. थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ गिवन बाय जॉन डाल्टन इन द ईयर 1803. जॉन डाल्टन आपने सुना होगा, इन्होंने दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे इसको. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वेरी important and good law. What does it states? Let us see. When 2 elements combine with each other, 2 एलिमेंट हैं और वो दोनों एक दूसरे रिएक्शन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. तो when 2 elements combine with each other to form 2 or more than 2 compounds, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं. The masses of one of the element which combined with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुने. When 2 elements combine with each other to form 2 or more than 2 compounds, then the masses of one of the element which combine with fixed mass of the other bear a simple whole number ratio to one another. यानी एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा और दूसरे एलिमेंट का मास वेरिएबल होगा. तो जिस एलिमेंट का मास वेरिएबल होगा उसके अंदर मास का सिंपल रेशियो होगा. मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, देखें यहाँ पर ध्यान से. जैसे सपोज मैं करता हूँ ए और बी आर 2 एलिमेंट्स. अब ए और बी मिल करके 2 कंपाउंड बनाते हैं. एक कंपाउंड है ए बी और एक कंपाउंड है AB2. अब इन 2 एलिमेंट ने ये 2 कंपाउंड बनाने हैं, तो इसमें दोनों कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है. किसका फिक्स्ड मास है? ए का. कि दोनों में ए है. अब वेरिएबल किसका होगा? बी का मास. ये तो यहाँ से बी और यहाँ से बी. अगर मान लें सपोज लेट करते हैं एक बी के एटम का मास है एक्स, तो इसका मास हो गया एक्स. तो 2b का मास कितना होगा भाई? सिंपल
2x। अब इन दोनों के बीच में सिंपल रेशियो आ जाएगा 1:2 बाई मास। ठीक है कि नहीं? तो लॉ क्या कहता था कि वन ऑफ द एलिमेंट यानी कि बी विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अनदर एलिमेंट यानी कि ए बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब प्रॉपर एग्जांपल बताता हूं मैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड बनाते हैं। क्या आपको पता है वो दो कंपाउंड कौन से हैं? जिनको पता है वो समझ लें, जिन्हें नहीं पता है वो भी समझ लें। वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये H2O2 है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसमें आप दोनों कंपाउंड में देखो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा। सोचो, चलो मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है, H2 यहाँ पे भी, H2 यहाँ पे भी है। अब वेरिएबल मास किसका हो गया इसके अंदर? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 16। और यहाँ पर मास कितना होगा बेटा? 32। तो रेशियो क्या हो गया? 1:2 बाई मास। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट भी मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं दो, बहुत पॉपुलर हैं, CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर इन दोनों कंपाउंड में किसका मास फिक्स्ड है? अब तो समझ में आ गया होगा, कार्बन का मास फिक्स्ड है, क्योंकि दोनों में कार्बन एक एक एटम है। अब वेरिएबल किसका होगा मास? ऑक्सीजन का। O 16, O2 32, तो 1:2 बाई मास, सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी एक एलिमेंट जो कि फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट से कंबाइन करता है तो वो होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में, सिंपल होल नंबर मल्टीपल में। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूफ करता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में देखो NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की। इसके अंदर आपको प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करते हैं। आज हमने 3 लॉज पढ़ लिए। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीनों लॉज को आप लोग याद करेंगे और उस पर बेस्ड मैं वर्कशीट जो है अभी वीडियो अपलोड होने के बाद में मैं वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है कि नहीं? और जो ये क्वेश्चन दिया है मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाला, वो सभी बच्चे मुझे सॉल्व करके फ़ोटो खींच के भेजेंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा आप पढ़ रहे हो। ओके, ऑल द बेस्ट।